By the name of Allah, who is the most merciful and who is the judge of the day of judgment. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so you are all fine and you are doing well. Okay, today we are going to discuss about the remaining parts of direct and indirect speech. Two kinds of sentences have been discussed before, and now we are going to discuss the next one, imperative sentences. What type of sentences would be known as imperative sentences? Those sentences in which we find any request, order, advice, or forbid. They would be known as imperative sentences. In these sentences, said to, our reporting verb will be changed according to the situation or sentence. How according to the sentence or situation? If we find in a sentence that there is an order, then we will change it into ordered. If there is any advice, it will be changed into advised. And if there is any request, then we can change it into requested. And by removing the inverted commas, we will write to. For example, the teacher said, get out of the room. If we observe this sentence, it's not a request, not advice, nor forbid, it's an order. तो ऑर्डर किया जा रहा है यहाँ पे. द टीचर सेड विल बी चेंज इनटू ऑर्डर. द टीचर ऑर्डर्ड. बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर टू गेट ऑफ द रूम. So we have changed the sentence in such a way, the teacher ordered to get out of the room. Okay, the next example is that he said to me, please help me in this case. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, बराए मेहरबानी इस मामले में मदद कर दी जाए. सो सेड टू विल बी चेंज इनटू रिक्वेस्टेड एंड बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर टू. शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन दैट केस. ओके, मी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है. ओके, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी है. तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हर, एंड दिस विल बी चेंज्ड इनटू डैट. So far as we have discussed about the rules of certain words, that how they will be changed while changing the sentence from direct speech to indirect speech. So this has been changed here into that. She requested me to help her in that case. The next one is that the sentences in which we find like the situation of forbid. Forbid का मतलब क्या होता है, मना कर देना, किसी बात से, किसी काम से रोक देना. अगर हम forbid का वर्ड यूज़ करते हैं then there is no need to write the words like don't or not to. इनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. इसलिए रिमूव कर देंगे कि फॉरबिड में ऑलरेडी मना कर दिया गया है, तो अब अगेन नेगेटिव वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड इसका वे है कि अगर हम सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज करते हैं तो देन हमें नॉट लगाने की ज़रूरत होगी. डू नॉट को हम चेंज कर देंगे नॉट टू में, ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रॉपर रहे. ओके, सी द एग्जाम्पल नाउ. शी सेड टू मी डोंट प्लक द फ्लावर्स. सेड टू विल बी चेंज इनटू फोरबिड. तो अब हम यहाँ पे डू नॉट और नॉट जो है इसको रिमूव कर देंगे. बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर टू. शी फोरबिड मी टू प्लक द फ्लावर्स. अगर इसको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, द सेकेंड वे टू चेंज द सेंटेंस, शी आस्क्ड मी ओके नॉट टू प्लक द फ्लावर्स. हियर वी हैव चेंज डू नॉट इनटू नॉट टू. नॉट को हमने चेंज कर दिया नॉट टू में. शी आस्क्ड मी नॉट टू प्लक द फ्लावर्स. फॉरबिड का वर्ड यूज़ करेंगे तो नॉट का वर्ड यूज़ नहीं होगा. अगर आस्क्ड का वर्ड यूज़ करते हैं तो नॉट का वर्ड यूज़ होगा. डू नॉट की जगह हम लगाएंगे नॉट टू. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस. वी विल डिस्कस इट लेटर. ओके, सी द नेक्स्ट. There is another type of sentences is optative sentences. What type of sentences are optative sentences? Like
prayed, cursed and wished. In those sentences we will find pray, curse और wish. या तो दुआ दी गई होगी, बद्दुआ दी गई होगी, या फिर ख्वाहिश का इजहार किया गया होगा. इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास विल बी चेंज्ड इनटू डैट and said to, our reporting verb will be changed according to the sentence. अगर तो दुआ दी गई है then it will be changed into prayed. अगर बद्दुआ दी गई है then it will be changed into cursed, and if there is any wish then it will be changed into wished. Okay, firstly we will have to see this one. अगर दुआ दी गई है उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, उसमें अगर said to है it will be changed into prayed for. ओके, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए हमने इसको प्रेड फॉर में चेंज करना है. ओनली सेड है तो उसको हम प्रेड में चेंज करेंगे. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल हियर. ही सेड टू मी मे यू सक्सेड. दुआ दी गई है ना. ओके, सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू प्रेड. ही प्रेड फॉर मी. बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर दैट. ओके, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट हमारे पास के यू, सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है तो यू का सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस आई आ जाएगा यहाँ पे. दैट आई मे विल बी चेंज इनटू माइट. दैट आई माइट सक्सेड. ओके, ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सेड. वी हैव चेंज द सेंटेंस हियर. See the next one. Example here. The old lady said to him, may you go to hell. यहाँ पे बद्दुआ दे दी गई है ना. Said to will be changed into curse. The old lady cursed him. By removing the inverted commas we will write here that you, second person will be changed according to the object. object हमारे पास him है तो him का subjective case ही आ जाएगा. मे को हम चेंज करेंगे माइट में. मे विल बी चेंज इनटू माइट गो टू हेल. द ओल्ड लेडी कर्स्ड हिम दैट ही माइट गो टू हेल. द ओल्ड लेडी कर्स्ड हिम दैट ही माइट गो टू हेल. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इट इज़ रिलेटेड टू विश. जी, इसमें शी सेड वुड दैट आई वुड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ओके, वुड डैट जो है इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विश. तो ये वुड डैट विश के लिए हम लगाते हैं जब किसी तमन्ना, किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं. जी, सेड विल बी चेंज्ड इनटू विश्ड. शी विश्ड. बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर दैट. तो जब हमने विश्ड का वर्ड पहले ही यूज़ कर दिया तो वुड डैट अगेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम रिमूव कर देंगे. आई विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन है और शी हमारे पास आ जाएगा. ओके, शी वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. तो यहाँ पे हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये अनरियल पास्ट है. पास्ट में ख्वाहिश की बात हो रही है जो कि पूरी नहीं हुई थी. सो अनरियल पास्ट में हम जो है टेंस को चेंज नहीं करेंगे. शी विश्ड दैट शी वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ओके, सेम एग्जाम्पल हम देखेंगे इधर. जी, दिस वन द लास्ट एग्जाम्पल आप लोग देखोगे. ही सेड वुड दैट आई वर अ बॉय. ओके, यहाँ भी ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया है. तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस में विश की ही एग्जाम्पल है. सेड विल बी चेंज इनटू विश्ड. शी विश्ड. बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर दैट. आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा शी है तो यहाँ पे शी आ जाएगा. शी वर अ बॉय. शी विश्ड दैट शी वर अ बॉय. सो वी कैन चेंज इट इन सच अ वे. The next kind of sentences is exclamatory sentences. Exclamatory sentences कौन से होते हैं? Those sentences in which we can find situation are the feelings or emotions like joy, sorrow and wonder. या तो आप खुश होते हो या फिर हम उदास होते हैं, गमज़दा होते हैं या फिर किसी बात पे हैरानगी का इजहार किया जाता है. ओके, इसमें भी sad to will be changed according to the sentence. खुशी की बात हो रही, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. गम की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो. एंड इफ देर इज़ एनी टाइप ऑफ अमेजमेंट देन इट विल बी चेंज्ड इनटू वंडर. ओके, हियर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी विल ऑब्जर्व हियर. आमिर सेड. ओके, आमिर सेड हुर्रा वी हैव won the match.
ओके, यहाँ पे अब क्या है, खुशी का इजहार किया जा रहा है ना, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच. Said will be changed into exclaimed with joy. Amir exclaimed with joy. By removing the inverted commas, we will write here that. हुर्रा को हम रिमूव कर देंगे. हुर्रा का वर्ड इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ प्लेयर, खुशी का इजहार है, हैप्पीनेस का इजहार है, तो वो तो हमने पहले मेंशन कर दिया. आमिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो अगेन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वी इट्स आवर फर्स्ट पर्सन. ओके, और फर्स्ट पर्सन की ये प्लूरल फॉर्म है. ओके, वी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे पास आमिर है. यहाँ पे ज़रा लिसन केयरफुली ना, आमिर का प्रोनाउन हमारे पास क्या होगा, ही. ठीक है, अब हम यहाँ पे ही लगाएंगे तो ये अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन नहीं आ रहा. वी हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ही लिखनी है. ही की प्लूरल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, दे. जब बहुत से लोगों की हम बात करते हैं तो उसके लिए दे का वर्ड यूज़ करते हैं. डैट दे हैव विल बी चेंज इनटू हैड. डैट दे हैड वॉन द मैच. आमिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच. Okay, observe the next example. She said, alas, he has lost his precious watch. Okay, this one. alas, ये जो alas का वर्ड है, ये इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, दुख के इजहार के लिए यूज़ होता है ना. जब हमें कोई बुरी खबर मिलती है या फिर किसी बात पे हम गमज़दा होते हैं या किसी नुकसान पे हम परेशान हो जाते हैं. So said will be changed into she exclaimed with sorrow. By removing the inverted commas we will write here that. ही हमारे पास थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा. थर्ड पर्सन नो चेंज. ही. हैज़ को हम चेंज करेंगे. हैज़ विल बी चेंज इनटू हैड्स. हैड्स लॉस्ट हिज प्रीशियस वॉच. यहाँ भी हिज जो हमारे पास है थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होगा. शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज प्रीशियस वॉच. Okay, see the next one example here. Okay, the next one is it's Sazan started here. We have to wait for some minutes here. Okay, the next example here. She said, "How beautiful this painting is." यहाँ पे क्या है, हैरानगी का इजहार किया जा रहा है. हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज़. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेड विल बी चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद वंडर. शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट. बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर दैट. नाउ वी हैव टू राइट इट इन अ सिंपल स्टेटमेंट ना. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है पेंटिंग. पेंटिंग इसको हम चेंज करेंगे वॉज में. दैट पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल. हेयर वेरी ब्यूटिफुल ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है ना कि बहुत खूबसूरत है. शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल. द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर. दे सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन इट इज़. कितना खूबसूरत सीन है. अगेन देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अमेजमेंट, वंडर. सेड विल बी चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद वंडर. They exclaimed with wonder. By removing the inverted commas we will write here that, and it is changed into it was. It was a very beautiful scene. They exclaimed with wonder that it was a very beautiful scene. ओके, तो यहाँ पे लाइक ये वर्ड है ना, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़. ओके, हाउ वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग इट इज़. तो इसमें व्हाट और हाउ ऐसे ये वर्ड्स क्यों हैं, ये एक्सप्रेशन है हैरानगी के. अब हमने एक्सक्लेम्ड विद वंडर को पहले ही सिचुएशन डिस्क्राइब कर दी है. देन देयर इज़ नो नीड टू मैंशन दिस वर्ड्स अगेन बिकॉज दे ऑलरेडी हैव बीन मैंशनड. इसलिए हम इनको रिमूव करेंगे. Okay, next there are 15 exercises related to these kinds of sentences. You will find there like there is an exercise which is based on like sentences, operative sentences, or which is another exercise which is related to imperative sentences. In such a way there are 15 exercises. You have to practice them, you have to solve them, you have to change those sentences from direct speech to
indirect speech. And if you feel any problem anywhere that you can't change the sentence, then you can send to me. I will make you understand the situation. I will make you understand the sentence, that how you have to change that. Okay girls, stay blessed. Allah Hafiz and thank you.